Hello students. Hello Aishwarya, how are you? Fine. So on your request I have started trigonometry function. So kindly study well, okay, and ask me any doubt whatever you want, right? So बच्चों, so now we are going to start some questions of textbook, okay? So now I am going to start example 3. तो बच्चों एग्जाम्पल 3 जो है मैं शुरू करूंगा. क्वेश्चन ध्यान से सुनिए. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल. सर्कल का रेडियस निकालना है बच्चों. सपोज दिस इज ए सर्कल, यू हैव टू फाइंड द रेडियस. सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री एंड आर्क लेंथ इज 37.4. सो हाउ द फिगर विल बी. सपोज दिस इज द सेंटर and this is length of the arc and this is the central angle. Theta is equal to 60 degree and you have to find this radius equal to question mark. Is it clear? So you know one formula, it's very simple. The formula is theta is equal to L by R. I told you last class, theta in radian is the ratio between length of the arc to the radius of the circle. Is it clear? So theta is given, theta equal to 60 degree. So we have to convert this degree into radian. So 60 into pi by 180 degree, you will be getting pi by 3. That is rad. So I got the radian equivalent of 60 degree बच्चों. Okay. Now also we know what is L. L is also it's given, that is 37.4 सेंटीमीटर बच्चों. तो ये आपका जो है सेंटीमीटर में दिया है. सो नाउ थीटा इज इक्वल टू L by R. सो व्हाट विल बी L. R को व्हाट विल बी R. R को ऊपर लेके आइए बच्चों, थीटा को नीचे लेके जाइए. सो R इक्वल टू L by थीटा. सो L इज 37.4 divided by, in the place of theta I will be putting pi by 3. ठीक है बच्चों. अब आप उसको सिंप्लीफाई करिए. 37.4. now this becomes 3 by pi. so this pi by 3 becomes 3 by pi. next is 37.4 into 3. this pi you can write 22 by 7. is it clear? Next is 37 into this 3 into 7 by 22. ठीक है बच्चों. So this is 37.4 into, आप बच्चों 11 से कैंसिल करेंगे. 11 2s are 22. This gets cancelled. 11 3s are 33.4. Okay. So again 2 से कट कर सकते हो. This is 2 1s are 2.7. तो फाइनल आंसर इज 1.7 इंटू 7 3s are 21 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों. अभी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर एज 35.7. सो योर आंसर विल बी, यहां लिख देता हूं 35.7 सेंटीमीटर. सो दिस इज द रेडियस. ठीक है बच्चों. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. एग्जाम्पल 4. सो दिस क्वेश्चन वॉज वेरी सिंपल. आर्क लेंथ वॉज गिवन. आर्क लेंथ वॉज 37.4 एंड सेंट्रल एंगल वॉज गिवन. यू आर आस्क्ड टू फाइंड रेडियस एंड यू नो वन फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू L by R. सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला. लेकिन बच्चों थीटा याद रखिए should be in radian. तो बच्चों आपका जो थीटा है वो रेडियन में होना चाहिए. इट शुड नॉट बी इन डिग्री. याद रखिए. सो ये थीटा को आपको रेडियन में मेजर करना है. इज इट क्लियर बच्चों? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. एग्जांपल 4.
So now we are going to crack example 4. The minute hand of a watch is 1.5 centimeter long. तो बच्चों मिनट हैंड का बात कर रहे हैं. So this is clock, this is the center, and this what I am drawing is minute hand. ठीक है बच्चों. Now this minute hand moves through 40 minutes. So after 40 minutes where this minute hand will come बच्चों, like that it will rotate and probably it will reach here after covering 40 minutes. So here you can mark it as 40 minutes. So this is 0 minute oblique 60 minutes. Is it clear bachcho? Now this minute hand will reach here. So you have to calculate what is how far does it tips move in 40 minutes. So this is the tip, this is the tip. Okay, आपको ये बताना है how far this tip is moving for 40 minutes. So tip will start from here. So this much length the tip will cover and reach here. So you have to find this length. Okay बच्चों, तो can I call this distance covered by tip as length of an arc? Yes. So this becomes length of an arc. This will be theta, central angle. Okay, and this length of the minute hand you can call it as radius. So this radius is given as 1.5 centimeter. ठीक है बच्चों, तो लिखते हैं. तो फर्स्ट आई एम गोइंग टू राइट length of minute hand. This you will call as radius, and that radius as per the question is 1.5 centimeter. Is it clear? And distance covered by tip of minute hand be L centimeter. So distance covered by the tip of minute hand be L centimeter. Is it clear? So next this theta you have to find. अब बच्चों एक चीज बताइए, when this minute hand completes one rotation, how much minute it will cover? बताइए. जब ये मिनट हैंड एक रोटेशन को पूरा कंप्लीट कर देता है, इट विल कवर डेफिनेटली 60 मिनट. क्लियर? नाउ when it covers one complete rotation, how much radian does it covers? Do you know that? How much radian does it covers? It covers 2 pi radian. 2 pi radian. So in 1 minute this is going to cover 2 pi by 60, that is 30. 1 minute it is going to cover pi by 30 radian. This information I hope is very clear to you. Next, so I can write radian measure in 40 minutes is equal to, for 1 minute this is the radian, 1 minute के लिए. So for 40 minutes pi by 30 into 40, 0 0 cancel, so you can write the answer 4 pi by 3
रेडियन. am I right? So this you can take it as theta. तो बच्चों फ्रॉम द मिनट आपने क्या निकाल लिया? रेडियन निकाल लिया. सिंपल. नाउ यू नो वन फॉर्मूला. व्हाट इज दैट? थीटा इज इक्वल टू L by R. So theta you got as 4 pi by 3. L you have to find and the radius is given as 1.5 centimeter. Am I right? यूनिट नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा. क्रॉस करिए बच्चों. So this is 4 pi by 3 into 1.5 equal to L. So now I am writing L as 4. In the place of pi बच्चों आप लिख सकते हो 22 by 7. This is 1 by 3 बच्चों. और 1.5 की जगह पे for simplicity you can write 3 by 2 because 3 by 2 is 1.5. 2 से बच्चों कैंसल 11, 3 कैंसल. So ultimately L you are going to get 44 by 7. कट करते हैं. 7 6 42.6.3. तो अप्रॉक्सीमेटली बच्चों यू आर गोइंग टू गेट 6.3 सेंटीमीटर. सो दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क एंड दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड इन 40 मिनट्स. ठीक है बच्चों. सो ऐसे क्वेश्चन में देखिए मेन चीज जो है थीटा इज इक्वल टू L by R. ये थीटा जो है आप मिनट के हेल्प से निकाल सकते हो. विद हेल्प ऑफ मिनट यू कैन हंट थीटा. इन क्वेश्चन either रेडियस विल बी गिवन, यू आर सपोज टू फाइंड L, और L विल बी गिवन, यू आर सपोज टू फाइंड रेडियस. तो इन दोनों के बीच में ही रेस होगा बच्चों. थीटा इज आउट ऑफ द रेस. थीटा कभी दिया नहीं रहेगा, कभी पूछेगा भी नहीं. ओनली मिनट विल बी गिवन. फ्रॉम द मिनट यू हैव टू हंट थीटा. बस ये L और R के बीच में आपको सोचना है. L इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द मिनट हैंड इन सो एंड सो मिनट्स एंड R इज द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड विच इज द रेडियस. यही कनेक्टिविटी है बच्चों. तो उम्मीद करता हूं को समझ में आ गया होगा. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हो 11th के बच्चों अच्छा से पढ़िए. 11th बहुत जरूरी है. 11th पढ़ोगे तो 12th भी आएगा समझ में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों. एक्सरसाइज 3.1. सो नाउ आई एम डूइंग एक्सरसाइज 3.1 and question number 3. Clear? So the question is, a wheel makes 360 revolution in 1 minute. बच्चों a wheel makes 360 revolution. 360 revolution in 1 minute. ये बच्चों क्वेश्चन दिया है. आपको निकालना क्या है? How many radian does it turn in 1 second? So this is my dear students, lovable students given. आपको निकालना है टू फाइंड. क्या फाइंड करना है? देखिए बच्चों, you have to find radian does it turns in 1 second. How many radians does it turn in 1 second?
तो यानी 1 सेकंड में वो कितना टर्न करेगा आपको निकालना है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट इज प्रोसीजर। अब बताइए, फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन व्हाट कैन यू डू। ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बच्चों, 360 revolution equal to 1 minute. I am going to adopt unitary method. So 360, it's not 360 revolution. So in one revolution बच्चों, how many radian you cover? You cover 2 pi. So I can write 360 into 2 pi equal to 1 minute contains 60 seconds. ठीक है बच्चों, अब देखिए, so what you have to find? 60 seconds. You have to find 1 second. So बच्चों 1 seconds के लिए आपको 60 को नीचे लेके आना पड़ेगा। 360 into 2 pi rad, यहां भी लिख देता हूं rad, divided by 60. Cancel, 6 6 are 36. So you will be getting the answer 12 pi rad equal to 1 sec. So what does it means? It means that in 1 second that particular object is going to do a turning of 12 pi radian. अब इमेजिन करिए बच्चों, दिस इज इजी टू इमेजिन, 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, यानी 1 मिनट में 360 बार वो टर्न करता है। ठीक है, चलिए 360 1 मिनट यानी 60 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में बच्चों कितना बार हुआ? 6th revolution. In 1 second it takes 6 revolution. Is it clear? 1 revolution means 2 pi radian. You know that 1 revolution 2 pi radian, आपको मालूम है। तो 6 revolution में बच्चों कितना रेडियन होगा बताइए? 2 pi, 4 pi, 6 pi, 8 pi, 10 pi, 12 pi. So here I am completing 6 revolutions and I am getting radian measure as 12 pi. Getting as 12 pi. तो बच्चों बहुत सारा क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। तो 1 रेवोल्यूशन मतलब 2 पाई, 6 रेवोल्यूशंस मतलब 12 पाई। बस आप ये निकालिए कि 1 सेकंड में कितना रेवोल्यूशंस हो रहा है। एक बार वो पता चल गया, आपको रेडियंस भी निकल जाएगा, बिकॉज यू नो दैट 1 रेवोल्यूशन करस्पॉन्ड्स 2 पाई रेडियन। तो बच्चों समझ में आ गया, दिस इज प्योरली यूनिटरी मेथड, दिस डज नॉट रिलेट्स विथ 11th क्लास बच्चों, 8th क्लास का बच्चा भी कर सकता है। 360 इंटू रेवोल्यूशन 1 मिनट, 360 इंटू रेवोल्यूशन कंटेन्स 2 पाई रेडियन 60 सेकेंड्स, 60 को नीचे ला दिया, 1 सेकेंड में बच्चों इतना रेडियन आ गया। सो हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न्स इन 1 सेकेंड? इन 1 सेकेंड इट टर्न्स ए रेडियन ऑफ 12 पाई। सिंपल। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर सेलिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द डिग्री मेजर। तो यानी बच्चों टू फाइंड आपको निकालना है डिग्री मेजर। ठीक है बच्चों, of the angle subtended at the center of a circle of radius 100 centimeter. So next is given, so radius is 100 centimeter and arc length you know बच्चों L होता है, that is 22 centimeter. So this question is very simple, you have done this before also.
लेकिन यहां आपको निकालना है बच्चों डिग्री मेजर निकालना है। आप जो पहले क्वेश्चन किए थे जिसमें आर और एल दिया था, कौन सा क्वेश्चन याद है आपको? तो उसमें आपने क्या निकाला था? रेडियन मेजर। तो देखिए कैसे करना है। प्रोसीजर, यू सी केयरफुली। तो बच्चों वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। सो थीटा इज इक्वल टू एल के जगह पे 100, सॉरी एल इज 22 एंड आर इज 100, बोथ आर इन सेंटीमीटर, सो डोंट वरी। सो कट करेंगे तो 11 बाई 50। सो बेटर यू डोंट कट इट, ऐसे ही रखिए, ठीक है। चलते हैं 11 थीटा इक्वल टू 11 बाई 50। दिस इज रेडियन। बच्चों आपको निकालना है डिग्री मेजर। अब डिग्री मेजर, सो डिग्री मेजर का फॉर्मूला क्या लिखेंगे बच्चों? यू नो दैट इट इज रेडियन मेजर इंटू 180 बाई पाई, ठीक है बच्चों। तो व्हाट इज रेडियन मेजर? इट इज 11 बाई 50 इंटू 180। तो पाई के जगह बच्चों मैं लिखूंगा 22 इंटू 7। सो दिस इज डिग्री। अभी आपको सिंप्लीफाई करना होगा इसको बच्चों। 0 0 कैंसल, 2 11s are 2 9s are nothing is going to cancel, so 99 into 7 डिवाइड बाई 55। अब बच्चों ये आपको जो मिला है ये डिग्री मिला है। अब ये डिग्री को लास्ट क्लास जैसे मैंने बताया था, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिए, फिर डिग्री के बाद आपको कुछ मिनट्स मिलेगा बच्चों, फिर मिनट्स को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिए, यू विल गेट सेकंड्स। तो अल्टीमेटली यू विल रिप्रेजेंट दिस एज डिग्री, मिनट एंड सेकंड। तो यानी कुछ नहीं, यहाँ पे आपको बस डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में, डिग्री मेजर निकालना है। रेडियन मेजर यहाँ दिया है, ये रेडियन मेजर को आपको डिग्री मेजर में चेंज करना है। इज इट क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यानी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें आपको आर दिया है, एल दिया है और आपको निकालना है डिग्री मेजर, ठीक है बच्चों। तो यानी आपको जो मिल रहा है वो है रेडियन मेजर। बच्चों याद रखिए, जब भी हम फॉर्मूलाज में यूज करते हैं वी हैव टू यूज रेडियन मेजर, वी आर नॉट गोइंग टू यूज डिग्री मेजर। मैंने लास्ट क्लास को बताया था कि डिग्री मेजर डजंट हैज एनी साइंटिफिक बेस, इट वाज जस्ट एन assumption टू डिवाइड द कंप्लीट revolution into 360 parts. So whatever calculation we do, that we have to use only radian measure. डालना भी रेडियन मेजर, आएगा भी रेडियन मेजर, यानी कोई भी कैलकुलेशन में डिग्री मेजर यूज नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, वी आर गोइंग टू क्रैक क्वेश्चन नंबर 5। अब ध्यान से देखिए। इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, diameter is given 40 centimeter, so we can very easily hunt radius which is 20 centimeter. Length of the chord is 20 centimeter. Length of the chord बच्चों, length of the chord लिखेंगे length of chord कितना है बच्चों? 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, आपको निकालना है माइनर आर्क लेंथ विच इज एक्चुअली एल, ठीक है बच्चों। अब बताइए कैसे करोगे? फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। सो ड्रॉ द फिगर, दिस इज द फिगर बच्चों। सो दिस इज कॉर्ड A B, this is the center, okay. So this you can make it as what? 20 centimeter. This you can make it as 20 centimeter. Length of the cord is again 20 centimeter. Is it clear बच्चों? आपको निकालना है ये जो ए बी का लेंथ है, ये आपको निकालना है। Am I right? Now if you see triangle OAB,
is an equilateral triangle. ठीक है बच्चों, why? Because OA equal to OB equal to AB is very simple. So अगर equilateral triangle है तो you know that all the angles are equal and measured 60 degree. So you can write angle AOB equal to 60 degree. Is it clear? So this angle you got as 60 degree. Is it clear, my dear students? Now this degree measure you have to convert into radian measure. This 60 degree equal to, you know, it is pi by 3 rad, and this is what? Theta. Now very simple, theta is equal to L by R. So this is the formula बच्चों. यहाँ पे आप क्या पुट करोगे? थीटा इन रेडियन ऑलवेज, मैंने बताया था. So this becomes pi by 3 L डिवाइड बाई 20, क्रॉस करेंगे पाई बाई 3 इंटू 20 इक्वल टू L. सो अल्टीमेटली बच्चों यू गॉट L एस 20 इंटू 22/7 इंटू 1/3, करेक्ट. सो L इक्वल टू दिस इज 440 डिवाइड बाई 21 सेंटीमीटर. सो दिस इज लेंथ ऑफ एन आर्क. तो बच्चों ये भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉर्ड दिया था. एंड दिस क्वेश्चन बिकेम इजियर बिकॉज यू गॉट दिस एज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. अगर ये इक्विलैटरल नहीं होता बच्चों तो ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था. इज इट क्लियर? सो फ्रॉम लेंथ ऑफ द आर्क, सिंस ऑल द साइड्स आर इक्वल, वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. सो दिस एंगल इज 60 डिग्री, और 60 डिग्री से आप रेडियन मेजर निकाल लेना और फिर फॉर्मूला में डाल लेना. जब भी फॉर्मूला में डालोगे रेडियन मेजर होना चाहिए. सो नेक्स्ट बच्चों वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 3.1. बच्चों समझ में आ रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है? ऐश्वर्या जी समझ में आ रहा है? तो आज कॉन्फिडेंट रहिए, मैं हूं, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. इन 2 सर्कल्स, तो 2 सर्कल है बच्चों. दिस इज सर्कल 1. ओके, लेट अस टेक अनदर सर्कल, ए बिगर सर्कल. सो दिस इज अनदर सर्कल, 2 सर्कल. ठीक है बच्चों. सेंटर O, सेंटर O, what is given? Same length, subtend 60 डिग्री and 75 डिग्री. तो बच्चों ये जो आर्क लेंथ है, दिस इज L here and here also the arc length is L. So in both the case the arc length is same, but since circles are different you can expect different radius. Okay, since this is a bigger circle I will take this as bigger R, and this is a smaller circle, I will take it as small r. ठीक है बच्चों, क्लियर है? नेक्स्ट इज द एंगल सबटेंडेड इज 60 डिग्री, so you can call this as theta 1 as 60 degree, and this you can call as theta 2 as how much? 75 डिग्री. कितना है बच्चों? 75 डिग्री. सो ऐसे करते हैं, R1 मान लेते हैं इसको, और यहाँ पे इसको मान लेते हैं R2. Am I right? So to find, आपको निकालना है बच्चों रेशियो ऑफ देयर रेडियस. रेशियो ऑफ देयर रेडियस यानी R1 बाई R2, या तो R2 बाई R1, कुछ भी कर सकते हो. सो माई डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे? रेशियो ऑफ रेडियस. इज इट क्लियर बच्चों? नाउ यू सी केयरफुली हियर, थीटा 1 इज 60 डिग्री. मैंने बताया था आपको कि डिग्री को कभी भी कैलकुलेशन में यूज नहीं करना है. सो दिस 60 डिग्री को मैं रेडियन में चेंज करूंगा बच्चों.
पाई बाई 180 डिग्री, 60 3 ज़ार, तो पाई बाई 3 rad. Okay, and r, now use the formula theta 1 equal to L by r1. Okay बच्चों, why L only? Because length of the arc in both the case are same as per the question, so I have written only L. So here I am going to put the value what. तो बच्चों उसको ऐसे ही रहने दीजिए, अभी बाद में देखते हैं. लेट अस टेक r1 फर्स्ट फ्रॉम हियर, L डिवाइड बाई थीटा 1. सो दिस इज 1. मैंने r1 निकाल लिया है यहाँ से. ठीक है बच्चों. सिमिलरली हियर ऑल्सो यू कैन डू थीटा 2 इक्वल टू 75 डिग्री. द 75 डिग्री वी हैव टू चेंज इनटू रेडियन. तो 75 इंटू पाई बाई 180 डिग्री. कैंसिल करेंगे बच्चों. 5 3 ज़ार 36, 5 1 ज़ार 5 5 ज़ार. दिस इज 12, दिस इज 5. तो अल्टीमेटली आई एम गोइंग टू गेट 5 पाई बाई 12 rad. ठीक है बच्चों. नाउ यू नो द फॉर्मूला थीटा 2 इक्वल टू L बाई R2. सो R2 इक्वल टू L by theta 2. So this you will call as number 2 and this is number 1. अब बच्चों आप करिए 1 डिवाइड बाई 2. आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करिए तो क्या मिलेगा बच्चों बताइए. R1 डिवाइडेड बाई R2, बोथ द LHS will get divided, R1 by R2 and RHS also. L divided by theta 1 divided by L divided by theta 2. Is it clear? R1 by R2 इक्वल टू L बाई थीटा 1. डिवाइड को इंटू में चेंज कर दीजिए बच्चों. थीटा 2 डिवाइड बाई L कैंसिल. R1 बाई R2 इक्वल टू थीटा 2 बाई थीटा 1. R1 बाई R2, थीटा 1 क्या है बच्चों, थीटा 2 क्या मिला आपको 5 पाई बाई 12 डिवाइडेड बाई थीटा 1 इज पाई बाई 3. ठीक है बच्चों. तो R1 बाई R2 इक्वल टू 5 पाई बाई 12 इंटू 3 बाई पाई. 3 4 ज़ार बच्चों, पाई पाई कैंसिल. तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, R1 बाई R2 इक्वल टू पाई पाई कैंसिल तो 5 बाई 4. सो दिस इज द आंसर बच्चों. इज इट क्लियर? तो ये है करने का तरीका. तो यानी स्मॉल रिवीजन, हियर आई हैव डन रेडियन मेजर, अप्लाइड द फॉर्मूला. हियर ऑल्सो आई हैव डन रेडियन मेजर एंड द फॉर्मूला. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 डिवाइडेड बाई 2. ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ मुझे रेशियो निकालना था, तो रेशियो के वजह से मैंने 1 डिवाइडेड बाई 2 किया. R1 बाई R2 सिंप्लीफाई मैंने किया, आई गॉट द आंसर एज 5 बाई 4. इज इट क्लियर बच्चों? चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो दिस क्वेश्चन सेज दैट फाइंड द एंगल इन रेडियन मेजर. आपको एंगल निकालना है बच्चों, रेडियन में निकालना है, थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स. तो बच्चों पेंडुलम है, यू नो this is the pendulum, this swings like this. Okay, so it will go up to here and it will come back. तो ये है pendulum बच्चों, right? So here length is 75 centimeters. So this O, suppose I say AB, so this length is 75 centimeters. So can we call this as the radius? Yes, so radius is 75 centimeter, right? So this swings to and fro motion, right? This is an example of simple harmonic motion. तो बच्चों ये ऐसे होगा. उसके बाद आपको निकालना है what is the distance described by the tip.
तो बच्चों ये जो टिप है या तो ये जो बॉब है, हाउ मच डिस्टेंस इट ट्रेवल्स, सो दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एन आर्क। तो बच्चों आप इसको एक सर्कल बना सकते हो कंप्लीट करके, ये सर्कल बन जाएगा। सो दिस इज लेंथ ऑफ द आर्क, दिस इज द रेडियस, एम आई राइट? एंड लेंथ ऑफ द आर्क इज गिवन, या लेंथ ऑफ द आर्क इज 10 centimeter. So this bob travels a distance of 10 centimeter from this position to this position, and the length of the string is 75 centimeter. Is it clear बच्चों? आपको निकालना है what is this theta, and that too in radian, not in degree. ठीक है, चलिए बहुत सिंपल है। तो बच्चों आपको फॉर्मूला मालूम ही है, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। सो थीटा इज इक्वल टू एल कितना है बच्चों, 10 divided by r is 75 2, and this is, so theta बच्चों you got 2/5। आपको क्या लगता है दिस विल बी इन डिग्री एंड रेडियन? आई टोल्ड यू अगर फॉर्मूला से आपको कोई वैल्यू मिल रहा है दैट इज इन रेडियन, अगर आपको फॉर्मूला में कोई वैल्यू डालना है दैट इज ऑल्सो इन रेडियन। सो दिस इज इन रैड, दैट्स ऑल, इतना ही है बच्चों। अगर डिग्री मेजर बोला होता तो आपको ये रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में चेंज करना पड़ता। इज इट क्लियर बच्चों? तो ऐसे करके हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। तो ध्यान से सुनिए, होमवर्क आपको क्या करना है, टिल एक्सरसाइज 3.1 एंड वॉट एवर क्वेश्चन आई हैव डिस्कस्ड नाउ इन द क्लास यू हैव टू डू दैट, एंड वॉट एवर क्वेश्चन हैव नॉट डिस्कस्ड, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, that also please do the homework and submit me as early as possible. Next class बच्चों we are going to discuss about trigonometric formulas which is very very important. तो अभी तक बच्चों हमने केवल ये पढ़ा है what is angle and what are the two units of angle, one is degree another is radian. Okay, 1 degree is that rotation which is equal to 1/360th of a complete revolution. 1 radian is the angle subtended by an arc of length 1 unit at the center of a unit circle. Am I right? And radian is much more scientific, and for all calculations we have to use radian measures. So with this, my dear students, I am concluding my class and hope to meet you in the next class.